Hello my lovely students. So in this video, as you know that I am continuing the chapter number 2, that is health and safety. So in the previous chapter now, what you have to learn? We have to learn now that we have to love our body, you have to exercise and eat healthy foods to keep it fit and healthy. So in this chapter, health and safety, we will learn about the um, health how to keep our health safe and good health, maintain the good health. Okay, so take good, so what are the aim of this chapter by teaching this? That is, take good care of your body, be safe inside and outside. We have to take care of our body, that inside and outside both. So let's get started. Starter. Have you ever felt a little irritated and annoyed when your parents told you to eat fruit or vegetable, or when they gave you some instructions for your safety when you go out? आप कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी हम अपने पेरेंट्स के साथ कहीं पे जाते हैं या पेरेंट्स हमें मना करते हैं कि आप यहाँ मत जाइए, या आप ये मत खाओ, आप वो मत खाओ, मैगी नहीं खाना है, या बाहर मत जाओ, रोड पे मत जाओ, खेलने मत जाओ. ऐसा होता है ना, कभी कभी हमारे पेरेंट्स हमें रोकते हैं, है ना, स्टॉप करते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं. पर आपने कभी सोचा है कि वो हमें पेरेंट्स हमें डू और डोंट्स ऑल द टाइम हमें क्यों बताते रहते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना? पेरेंट्स ही नहीं, टीचर्स भी बताते हैं, फ्रेंड्स भी कभी कभी कहते हैं अरे वहाँ नहीं जाना, ये मत खाओ, ये इससे ऐसा होगा, है ना. तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, we have to learn in this chapter. Okay, so in this chapter we have to learn health and safety, being safe, health is wealth, and communicable disease. Let's get started. Health and safety are the two most important things in our life. Everyone deserves to be happy, healthy, and safe. Let us now see how we can be healthy and safe. So the very common slogan is health is wealth. Okay, so health is the most precious thing in the world for any individual. All of us want to live an active and disease free life. Here are some ways to do it. Okay, so हमें लाइफ में क्या होना चाहिए, हम जब तक हेल्दी नहीं होंगे बच्चा, तब तक क्या होगा, तब तक हम अच्छे से ना पढ़ाई कर सकेंगे, ना हम अदर एक्टिविटीज़ अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं. सो वी हैव टू मस्ट लिव एक्टिव एंड हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री लाइफ. डिजीज़ फ्री लाइफ हमें स्पेंड करनी चाहिए. सो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक एक्टिविटी आप कर सकते हैं. आप एक हेल्थ चार्ट बनाइए, अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखिए, उनकी हाइट क्या है, वेट क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, और वो कितने घंटे वो एक्सरसाइज परफॉर्म्स करते हैं. ओके, और वो कितना हेल्दी फूड ईट करते हैं. इससे आपको उनको भी पता चलेगा और आपको खुद भी पता चलेगा कि आप कौन कौन सी रूटीन्स हेल्थ को वेल्थ रखने के लिए आप वो फॉलो करते हैं. ओके, सो ऑन द नेक्स्ट पेज द टॉपिक इज़ ईट हेल्दी फूड. हमें क्या क्या करना चाहिए अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, ईट हेल्दी फूड. हमें हेल्दी फूड ईट करना चाहिए. वी मस्ट ईट हेल्दी फूड एंड हैव अ बैलेंस डाइट इन ऑर्डर टू कीप आवर सेल्फ डिसीज फ्री एंड हेल्दी. ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें एक बैलेंस डाइट ईट करना चाहिए. सेकेंड थिंग इज exercise daily. Doing some kind of exercise daily such as running, walking, playing and doing yoga keep us fit or strong. Bacha, you don't have to play only video games or watching videos, watching movies, watching games, playing games online. You have must go outside and play some games, है ना, that's help in exercising or movement of your body. Okay, so the third point is think positively and worry less. We have to think that our mental health is very much important as being the physical health. I know physical health is important, but most important is mental health. If your mental health is not good now, so you don't focus, so you have do not focus on the physical health. Okay, in order to mentally healthy, we must have a positive attitude towards life. We must be joyful and happy. Okay, next one is drinking clean water. Okay, we have to drink at least 8 to 10 glasses of clean water daily, है ना. And water helps in what? Water helps in cleansing our body from inside. Okay, and making us healthy. And most of the celebrities are telling that drink more and more and more and more water, so you have to comes the glowy fresh face, है ना. तो we have to drink at least 8 to 10 glasses in a day. So taking proper rest. What is that? Taking proper rest. So sleeping and taking rest are also important for keeping our body healthy. How many hours? There is a must. The 8 hours of sleeps are very important for our health. So bacha, you have to taking proper rest at your home. Okay, taking enough sleep at the right times can help us protect our mental and physical health. They can balance the both.
Okay, mental and physical health. Okay, so the next one is being safe. What is being safe? Safety is very important whether we are at home or outside. Okay, you know safety is very important. If we cut our hand, is there a safety? Is the health is maintained? No. So we have to maintain our health by being the safe. So safety is very important whether we are at home or outside. We can avoid getting hurt if we are carefully and follow safety rules. ठीक है, कुछ कुछ safety rules हमें follow करने चाहिए. So what are the safety rules we have to follow at home? First of all, be careful with sharp things such as knife, blades and scissors. You may hurt yourself while using them. आपको sharp things use नहीं करनी चाहिए जिससे आपको क्या हो सकता है, harm हो सकता है. Okay, sharp things what? Just like a knife, blade, scissor, this type of. Second thing is keep the floor of the bathroom always dry. When you taking the shower na, mostly what? When you take shower, mostly the ground floor is what? It is made the wet with the help of water. Okay, so you have, this is your duty that the keep the floor of the bathroom always dry, and someone might slip and get hurt. Okay, so you have to keep them dry. थर्ड थिंग इज डू नॉट टच हॉट पैन. ओके, मम्मा किचन में अगर काम कर रही है तो आपको वो गर्म बर्तन आपको गैस पे से डायरेक्टली आपको टच नहीं करना है. ओके, देन फोर्थ थिंग इज डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल गैजेट्स. इलेक्ट्रिकल गैजेट्स या स्विचेस हमें वेट हैंड से टच नहीं करना चाहिए, बिकॉज जब भी हम उसे वेट हैंड से टच करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और वो हमें बहुत ज़्यादा हर्ट करता है ना. सो नेक्स्ट इज टेक मेडिसिन ओनली आफ्टर आस्किंग एन एडल्ट. ऐसा नहीं है कि अगर आपको कहीं भी दर्द हो रहा है तो जो भी घर पर दवा हो, जो भी घर पर मेडिसिन होती हैं वो आप जल्दी से ईट कर लो. नो, नॉट एट ऑल. आपको कभी वो मेडिसिन ईट नहीं करनी है विदाउट द परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स. ओके, नेक्स्ट थिंग इज डू नॉट स्कैटर योर थिंग्स ऑन द फ्लोर. आपको कभी भी अपने जो सामान रहते हैं, आपके जो थिंग्स हैं, मटेरियल्स हैं, वो आपको पूरे फ्लोर्स पे आपको स्कैटर नहीं करना है. क्यों? अगर मान लो कि कोई उस पर फिसल के गिर गया या किसी को पैर में, अगर आपके पास पिन है या पेन है या शार्प थिंग्स हैं, शार्पनर है या कोई ब्लेड है, अगर वो किसी के पैर में लग गई तो वो किसी हो सकता है बच्चा, वो किसी को आप हार्म कर सकते हैं. ओके, सो आपको ये चीज़ें फॉलो नहीं करनी है. नेक्स्ट थिंग इसके सेफ्टी आउटसाइड. ये हमारे कौन से सेफ्टी थे जो हमें घर पे फॉलो करने. अब हम वो वाले सेफ्टी रूल्स देखेंगे जो हमें आउटडोर हमें लर्न करने चाहिए. सो वी मस्ट इंश्योर अवर सेफ्टी व्हेन वी गो आउटसाइड बाय फॉलोइंग सम सिंपल रूल्स. ठीक है, कुछ सेफ्टी रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए जब हम आउटसाइड जाते हैं. सो द फर्स्ट वन इज डू नॉट गो आउट विदाउट इन्फॉर्मिंग द एल्डर्स इन द हाउस. आपको कभी भी बड़ों को, जो आपके एल्डर्स हैं घर के, उनको बिना बताए, बिना इन्फॉर्म किए आपको घर से बाहर नहीं जाना है. सेकेंड थिंग इज वाइल प्लेइंग आउटसाइड डू नॉट फाइट विद योर फ्रेंड्स. ओके, फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम्स यू प्ले. आप जब भी अपने आउटसाइड अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं तो आपको वहाँ पे फाइट नहीं करनी है. आपको गेम्स के रूल क्या करने हैं बच्चा, फॉलो करने हैं. थर्ड थिंग इज मेक श्योर यू प्ले इन द प्ले ग्राउंड एंड नॉट ऑन द रोड. आपको श्योर होना है कि आप जब भी खेल रहे हो, जब भी आप प्ले करते हैं तो आप प्ले ग्राउंड में खेलेंगे. ओके, गार्डन में खेलेंगे, आपको रोड पे नहीं खेलना है. नेक्स्ट थिंग इज वाइल क्रॉसिंग द रोड क्रॉस केयरफुली एट द जेब्रा क्रॉसिंग. जब भी आप कोई रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको जेब्रा क्रॉसिंग यूज़ करना है. जो वाइट और कौन कौन से कलर की होती है, वाइट और ब्लैक कलर की जो लाइनिंग होती है रोड पे, आपको उससे आपको क्रॉस करना है. ओके, अकेले आपको कभी क्रॉस नहीं करना है रोड. नेक्स्ट थिंग इज ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. या तो फिर आप जेब्रा क्रॉसिंग पे आप क्रॉस कीजिए या फिर आपके रोड के साइड्स में कौन सी एक चीज़ आती है, फुटपाथ. आपको हमेशा फुटपाथ पे चलना है, रोड पर कभी आपको वॉक नहीं करना. देन द नेक्स्ट थिंग इज ड्रेस प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द वेदर आउटसाइड. जैसा आपका वेदर है, एटलीस्ट आपका समर है तो आपको कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए, विंटर्स हैं तो वुलन क्लोथ्स पहनने चाहिए. इस तरीके से अकॉर्डिंग टू योर वेदर यू हैव टू ड्रेस अप लाइक दिस. ओके, नेक्स्ट थिंग इज कैरी योर सेफ्टी गियर. सेफ्टी गियर इज व्हाट, सच एज हेलमेट, कैप, ग्लव्स, आई वेयर एक्सेट्रा. इफ़ यू आर गोइंग फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जब भी आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं, इफ़ यू आर प्लेइंग द क्रिकेट सो यू हैव टू वेयर ऑल द सेफ्टी गियर्स ना, सेफ्टी गार्ड्स. सो दिस मस्ट बी केयरफुली. देन नेक्स्ट वन इज डू नॉट पुट योर हैंड और फेस
आउट ऑफ द विंडो वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस। जब भी आप कभी ट्रैवल करते हो ना कार और बस में, आप लोग बच्चा हमेशा क्या करते हैं, आप लोग हमेशा कार के और बस के बाहर देखते हैं खिड़की से, विंडो से, जो कि आपको क्या करना है, नहीं करना है। दिस इज़ अ वेरी बैड हैबिट। ओके, नेक्स्ट थिंग इज वॉट, डू नॉट जंप ऑन द बेंचेस और रन अराउंड इन द कॉरिडोर्स व्हेन यू आर इन स्कूल। आपको कभी भी बेंचेस पे, टेबल्स पे, कॉरिडोर्स पे, कभी कभी मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, स्टेयर्स होती हैं, स्टेयर्स का जो पकड़ने वाला हाथ है उस पर आप लोग स्लिप करते हैं। दिस इज़ वेरी बैड हैबिट। हाँ, आपको ये चीज़ें फॉलो नहीं करनी है, बहुत गंदी बात। और अगर कोई करता है तो आपको क्या करना है, आपको अपने टीचर से या किसी एल्डर मेंबर से आपको उसकी कंप्लेन करनी चाहिए। ओके, दैट आर द गुड बॉय एंड गुड गर्ल हु फॉलोज द दीज safety rules. Okay, so the next one is what, water safety. Do you know water is also harmful when, let's see, कब कब वाटर हमारा हार्मफुल होता है, वेन एवर वी लर्न द स्विमिंग ना, वी हैव टू, अगर हमारे में क्या होता है, हमें स्विमिंग सीखने का बहुत शौक होता है ना, पैशन होता है हमारा स्विमिंग सीखना। लेकिन बच्चा, जब तक आप छोटे हैं या अगर बड़े भी हो जाते हैं तो आपको हमेशा किसी सुपरविज़न या किसी ट्रेनर के हेल्प से ही आपको स्विमिंग सीखनी है। आपको डायरेक्ट स्विमिंग पूल में जंप नहीं करना है। ओके, दैट आर द वाटर सेफ्टी। व्हाट आर द सेकंड वाटर सेफ्टी, वी नीड टू बी केयरफुली वैन वी गो अराउंड एनी वाटर बॉडीज़। ओके, मैंने अभी बताया ना आपको, बाथरूम में हमेशा आपको बाथरूम को क्या रखना चाहिए, ड्राई रखना चाहिए। ऐसे ही जब भी आप कोई वाटर बॉडीज़ वाले एरिया में जाते हैं, जैसे लाइक स्लिपरी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको उस किनारे पे नहीं जाना है, नहीं तो आपका क्या हो सकता है, पाँव फिसल सकता है और आप उसमें डंप कर सकते हैं, है ना। देन थर्ड वन इज़, अ लाइफ जैकेट शुड ऑलवेज बी वॉर्न ड्यूरिंग बोटिंग, राफ्टिंग एंड अदर वाटर स्पोर्ट्स। जब भी आप कोई ऐसी स्पोर्टिंग वाटर स्पोर्ट्स प्ले करते हैं तो आपके पास लाइफ जैकेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन द नेक्स्ट वन इज़ फायर सेफ्टी। अब हम पढ़ेंगे फायर सेफ्टी। एज वी नो कि मम्मा जब भी आपके किचन में काम करती है, आपको फायर के पास नहीं जाना चाहिए, आपको किचन के पास नहीं जाना चाहिए, ना आपको कोई गर्म बर्तन टच करने चाहिए। ओके, सेफ्टी फ्रॉम फायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड अवर होम। इनसाइड तो मैंने आपको बता दिया कि किचन में आपको मम्मा जब भी आप बनाती हैं तो आपको कभी लाइटर्स या मैच स्टिक्स आपको कभी उससे खेलना नहीं चाहिए, कभी उसको टच नहीं करना चाहिए। एंड ऑल्सो वन मस्ट नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स इन द किचन। जब भी आप किचन में आप जा रहे हैं तो आप बिल्कुल आप ध्यान रखिए कि आप सिंथेटिक क्लोथ्स ना पहने। सिंथेटिक क्लोथ्स पहनने से क्या होता है, वो ज़्यादा ईजिली फायर को कैच करता है और आप क्या कर सकते हैं, बर्न हो सकता है, आप जल सकते हो। नेक्स्ट वन इज़, इन केस ऑफ फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी वाटर शुड नॉट बी यूज टू पुट आउट द फायर, इंस्टेड सैंड शुड बी यूज्ड। ठीक है, क्या होता है, हम इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी कभी कभी क्या हो जाता है, फायर लग जाता है। एंड ऑल्सो वाटर शुड नॉट बी यूज टू पुट आउट द फायर। ठीक है, वाटर को हमें यूज़ नहीं करना है फायर को क्या, उसको बुझाने के लिए। ठीक है, हमें उसके लिए क्या यूज़ करना चाहिए, हमें सैंड यूज़ करना चाहिए। ओके, रेत। नेक्स्ट इज फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी भी ऐसा कुछ होता है, लेट्स गेट लर्न अबाउट दिस। देयर आर अ नंबर ऑफ डिसीज दैट स्प्रेड ड्यू टू कंटेमिनेट फूड एंड वाटर। ठीक है, बहुत सारे डिसीज हमें क्या हो जाते हैं, फूड और वाटर से भी डिसीज हमें हो जाते हैं। टू रिमेन हेल्दी एंड प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम दीज डिजीजेज वी मस्ट फॉलो सम प्रिकॉशंस। What are the precautions? First one is, vegetables and fruit must be washed before eating and cooking. जब भी हम कोई कुक करने वाले हैं कोई फूड, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमेशा फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को वॉश करके ही हमें ईट करना चाहिए, कुक करना चाहिए। देन हाइजीनिकली कुक्ड फ्रेश फूड शुड बी कंज्यूम। जो भी हमें साफ़ सुथरे से, हमें अच्छी तरीके से, हाइजीन तरीके से हमें खाना बनाना चाहिए और ईट करना चाहिए। देन द नेक्स्ट वन इज़, क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी कंज्यूम्ड। हमें कोई से भी गंदा पानी, हमें डर्टी वाटर हमें ड्रिंक नहीं करना है, हमें हमेशा क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर ही हमें कंज्यूम करना है। एंड बॉइलिंग इज़ द, अगर आपके पास कोई फिल्टर्स नहीं है, आरओ नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, बॉइलिंग इज़ द बेस्ट वे टू किल जर्म्स, है ना। बॉइलिंग, आप वाटर को क्या कर सकते हैं बच्चा, बॉयल कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़, हैंड शुड बी वॉश्ड विद सोप एंड वाटर बिफोर एंड आफ्टर मील्स, है ना। आपको क्या करना है, आपको अपने हाथ हमेशा क्लीन रखने हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ सोप से आप हमेशा आप अपने हाथ को वॉश करने के बाद ही आप खाना खाएंगे। और जब आप खाना खा लेते हैं, ईट कर लेते हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने हैंड्स को वॉश करेंगे। ओके, so my childrens, my students, that's all of this video. I will continue this chapter in part 2 in another video. So in this video we have to cover like that health and safety. Health is wealth, and the safety guards, that is safety at home, safety outdoor, water safety, fire safety, food safety. So in the next video I will teach you about the communicable disease. Okay, communicable disease. And okay,
that's all of this chapter. Okay, so stay tuned. Bye bye, take care, and wait for the part number 2 of this chapter.